کرتا ہوں کہ وہ اپنے رفیق خاص شریک حیات کے ساتھ اوپر آ جائیں. محترم وی آر شریف صاحب اور محترمہ وی آر شریف صاحب. عزیز نبیل صاحب. پروگرام شروع ہوگا, شعراء اکرام آئیں گے اور شعر و شاعری کا پروگرام شروع ہو جائے گا. پہلے جو ہمارے مہمان خاص کر کے آئے ہیں, جو ان کا تھوڑا سا استقبال ہو جائے اور ان کی تھوڑی سی اظہار خیال ہو جائے, اس کے بعد آپ لوگ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. شعراء اکرام اور شاعرات اور شاعرات سب آئیں گی. تھوڑی سا صبر کر لیجیے پلیز. میں مستقیم مکی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے مہمانان میں جناب وی آر شریف صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. جناب وی آر شریف صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ میمنٹو اور شال پیش کریں. زوردار تالیوں سے استقبال کرو مستقیم مکی صاحب کا بھی اور وی آر شریف صاحب کا بھی. خدا ٹائمز کی طرف سے میمنٹو پیش کیا جا رہا ہے. آج کا جو جشن منایا جا رہا ہے وہ شاید آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہدا ٹائمز جو ہے وہ کافی پرابلم کے باوجود, بہت سارے تکلیف جو بھی ہے اس کے آنے کے باوجود اپنا یہ برقرار رکھا ہے انہوں نے. آج جو میگزین کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کہیں سے بھی کم ہونے نہیں دیا. وہ اس لیے ان کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور آج کے جشن کے بھی جو 10 سالہ جشن منا رہے ہیں اس کے لیے بھی مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں کہ اور میرے ساتھ ساتھی بیٹھے مہمان جو میرے ساتھی ہیں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اور آپ تمام کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے 2 منٹ برداشت کیا. اور مجھے بھی سبجیکٹ اس کا پتہ نہیں تھا, یہ ہدا ٹائمز کے بارے میں تھا. اور مستقیم بھائی جو ہے کافی اس کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں کہیں, اور اچھے کیلیبر کی اسٹینڈرڈ میگزین, یہ سے اردو میں اخبار ہو چاہے میگزین ہو, اس کو نکالنا, وہ جو اس کو نکال رہے ہیں, جو کرتے ہیں, انہیں کو معلوم ہے اس میں کیا تکلیف ہے. اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم جو بھی اخبار آپ دیکھتے ہیں جو اور اردو ٹائمز ہے, انقلاب ہے, یہ سب تمام چیزیں جو اخبار چلتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر, اس کی قیمت ہے اگر ردی میں بیچ دیا جائے, وہ جو پیسہ آپ دیتے ہیں اتنا پیسہ ان کو مل جاتا ہے. مگر کیوں یہ پھر بھی اخبار چلاتے ہیں؟ یہ ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیے جو پیپر اردو چلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے انگریزی اخبار دیکھیں گے, انگریزی میگزین آپ دیکھیں گے, اس میں 50% زیادہ ایڈ ہوتے ہیں. ان کو چلانا آسان اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے پیسے ان کو کافی پیسے ملتے ہیں. اردو اخباروں میں یا اردو میگزینوں میں برائے نام ایڈ آتے ہیں. اس کے باوجود بھی اس کو جاری رکھنا, یہ جو اخبار نکال رہے ہیں ان کی ہمت کی داد دینا ہمیں چاہیے, ان کو مبارکباد بھی دینا چاہیے, داد بھی دینا چاہیے
ये बहुत डिफिकल्ट काम है, इसलिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। सईद खान साहब जो सोशल वर्कर हैं और पता नहीं क्या क्या है, हर समाज में काम करते हैं, मुल्क और मिल्लत की कौम की खिदमत करते हैं। कोई भी ऐसा शोबा नहीं है, माशरे का हो या हुकूमत का हो या समाज का हो कि जिसमें वो सरगर्म ना हो। उनको मैं दावत देता हूं, आप स्टेज पे आइए, तशरीफ आइए। सईद खान साहब, और सेना की एमपी आ जाइए सर, ऊपर आइए सर, प्लीज सर। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ सामना न्यूज पेपर के चीफ एडिटर जनाब मोहतरम संजय रावत साहब जो LPB हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अदराह करम वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियों से संजय रावत साहब का इस्तकबाल करें। मैं हुदा सोशल फ्रंट की जानिब से तमाम मेहमानान का इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। मैं मुस्तकीम मक्की साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाबे मोहम्मद अली पाटनकर साहब और उनकी शरीक हयात मोहतरमा मुमताज पाटनकर दोनों की खिदमत में मुश्तरका मेमोरेंडम पेश करें। जनाबे मोहम्मद पाटनकर साहब, मोहम्मद अली पाटनकर साहब और मुमताज पाटनकर साहबा की खिदमत में, दोनों की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। सोशल फ्रंट की जानिब से मेमेंटो, शॉल और फूलों का नजराना पेश किया जा रहा है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त मौलाना मुस्तकीम साहब और अभी हमारे पार्लियामेंट्रियन रावत साहब और मेरे साथ जो भी बैठे हुए, मैं आपसे कहता हूँ कि आज हम आए हमारे जितने जो शौर हैं उनको सुनने के लाए हैं। और जहाँ शरीफ भाई की जहाँ रहते हैं, हम लोग कहते हैं कि अब हम सब शरीफ उनके वी आर शरीफ, आप जानते हैं वी एंड हम उनकी 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 वो जहाँ भी रहते हैं हम लोग शरीफ बन जाते हैं। हजरात उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि उर्दू का पेपर चलाना या उसका मैगजीन चलाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मुस्तकीम साहब का कि उन्होंने उर्दू को जिंदा रखा है। आप जानते हैं कि उर्दू, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने इसको अपनाया है, लेकिन गैर मुस्लिमों ने जिसकी जो खिदमत की है हमसे कोई कम नहीं है। ये एक कौमी ऐतिहासिक की ज़बान है और मैं चाहता हूँ कि हम इसको इतना जिंदा रखें कि हमारे बच्चे पढ़ और लिख सके। मुश्किल ये हुआ है, हमारे अंग्रेजी में जो बच्चे पढ़ते हैं हमें बड़ी हकीकी निगाह से देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे आज जो भी कामयाब हो गए हमारे सामने हैं वो सब उर्दू वाले हैं। महाराष्ट्र का पहला चीफ मिनिस्टर जो बना अंतुल्य उर्दू वाला, आज के मेहमानों को से जनाब मस्जिद में बना आपको देखेंगे उर्दू वाले, दिलीप कुमार फिर उर्दू वाले, बम्बई का सबसे बड़ा अच्छा सर्जन उर्दू वाले और हम भी उर्दू के। तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप उर्दू को संभालो, उर्दू का इतना ख्याल करो कि तुम्हारे बच्चे पढ़े लिख सके। अल्लाह हाफिज। आप सभी का इस्तकबाल है, खैर मकदम में स्वागत है आप सबका। और सर इस वक्त संजय रावत साहब हमारे दरमियान मौजूद है। सर आपका स्वागत है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, उर्दू के साथ मौजूद हैं, उर्दू के मुशायरे में मौजूद हैं।
आप जैसे लोग और आप जैसी शख्सियत हम लोगों को बहुत कम नसीब होती है, तो दिल बहुत खुश है। हम लोग बहुत छोटे छोटे जुमले बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत बड़े बड़े जुमले बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन इस वक्त मुस्तकीम भाई के साथ हम सब बेपनाह खुशी महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे जलवा अफरोज हैं इस वक्त स्टेज पे, डाइस पे। और कुछ फूल हैं सर, वो आपकी खिदमत में आना चाहते हैं और हम आपसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप उनको, हमारी बहुत हिम्मत अफजाई होगी कि आप उसे कबूल करें। मैं मुस्तकीम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सामना के तर्जुमान, सामना के एडिटर और शिवसेना का एक बड़ा कदावर नाम, और इस वक्त इस स्टेज पर आप मौजूद हैं हमारे दरमियान, हम बहुत खुशी के साथ और एतबार के साथ, एतमाद के साथ और बहुत सारी खुशियां हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं। ये फूल आपकी खिदमत में पेश है। सर ये शॉल है, बम्बई में ज़्यादा सर्दियां तो नहीं होती, लेकिन शायद कहीं किसी सफ़र में ये काम आ जाए आपके, तो ये एक मेमेंटो हमारी तरफ से, उदर टाइम्स की तरफ से आपके लिए पेश है। आप प्लीज़ इसे कबूल करें और ये शॉल आपकी खिदमत में है सर। और भाई आप लोग क्या बात है, जितने लोगों की हैं इतने सारे हाथ हैं, अगर सब मिलकर तालियां बजाते तो हम अपने मेहमान का अच्छी तरह इस्तकबाल कर पाएंगे। और सर आपसे दरख्वास्त है कि इस मौके पे हम आपसे हिंदी में, मराठी में कहा जाता है कि 2 शब्द सुनना चाहते हैं। मंच पर बहुत ही बड़े बड़े मेहमान बैठे हैं, लेकिन सुनने वाले सबसे बड़े होते हैं जो सामने बैठे हैं। अगर सामने कुछ नहीं हुआ तो हमें कौन पूछेगा यहाँ। चाहे कवि सम्मेलन हो, मुशायरा हो, साहित्य सम्मेलन हो, हम तो बोलने वाले, लिखने वाले लोग हैं। नेता तो बाद में बन गए। अगर हाथ में कलम नहीं होती तो कोई नेता घरे को पूछता नहीं। आजकल बोलने वाले बहुत है दिल्ली में, आपको मालूम है, कोई पूछता नहीं। लेकिन मैं अभी आपकी बात सुन रहा था उर्दू भाषा के बारे में। ये देश की भाषा है, देश की भाषा। लेकिन जो दर्द आपने बताया, लगभग सभी भाषाओं की यही वेदना है कि हमारी जो भाषाएं हैं धीरे धीरे हम उनको भूलते जा रहे हैं। हमारे बच्चे, मराठी स्कूलें बंद हो रही हैं। मुंबई में उर्दू स्कूल बहुत ज्यादा चलती थी एक जमाने में, लेकिन हम सब लोग इंटरनेशनल स्कूल्स, ये स्कूल्स, वो स्कूल, बिजनेस स्कूल, ये कोई हमारा संस्कार नहीं है। हमारी जुबान, हमारी भाषा ये अगर हमारे देश में नहीं रहेगा तो हम कहां जाएंगे। बहुत बड़ा योगदान उर्दू का इस देश के लिए है, समाज के लिए है, मैं मानता हूं। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, और इतनी मीठी भाषा है। लेकिन आपको भी मैं कहूंगा कि अपने जो बच्चे हैं, अपने पीछे जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी अपनी भाषा की जो लेके जाने के लिए आगे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, और सुनते सुनते एक आखिरी जनरेशन हमारे पास आ जाएगी और कहेंगे यहां कभी उर्दू बोलते थे, उर्दू सुनने वाले लोग भी थे, मराठी सुनने वाले लोग भी थे। सभी भाषा को हमको जिंदा रखना चाहिए। इस देश की सभी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं, क्योंकि ये जो हमारी मातृभाषा होती है, हमारी माँ की भाषा होती है, इस मिट्टी की भाषा होती है, वो नहीं रहेगी तो मैं मानता हूं देश नहीं रहेगा, कौम नहीं रहेगा। मैं मक्की साहब आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे बुलाए, बहुत प्यार से बुलाए, और आपकी इतने प्यार से बुलाते हैं तो मैं उससे कभी ना नहीं कहता हूं। मैं आज मुझे दिल्ली में प्रोग्राम था शाम को 7 बजे, वहां वो
जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब आने वाले थे और उनका बहुत आग्रह था, मतलब गवर्नर से ज्यादा मैं महत्व देता हूं मक्के साहब। एक अखबार चलाना, चाहे उर्दू हो चाहे मराठी हो, बहुत मुश्किल है। मैं एक अखबार चलाता हूँ, बड़ा अखबार चलाता हूँ, मुझे मालूम है भाई क्या अखबार चलाना कितने कठिन है। आप भी मैडम एक इतना बड़ा अखबार चला रही हो, लेकिन बहुत कठिन होता है अखबार चलाना, आगे ले जाना। आप सब लोग कर रहे हैं और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपनी मेरी दो बातें, दो शब्द सुने। थैंक यू वेरी मच। मेहमान जनाब नसीर पठान साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। कुम्हारवाला वेलफेयर एसोसिएशन के रोह रवां जनाब नसीर पठान साहब की खिदमत में गुलों का नजराना और शॉट का नजराना पेश करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोबारा तालियों की गड़गड़ाहट गूंजनी चाहिए। हमारे दरमियान निहायत ही अहमियत की हामिल शख्सियत, हमगीर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। जनाब एडवोकेट मजीद मेमन साहब इंतहाई मसरूफियत के बावजूद हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा है और हमारे दरमियान मौजूद है। मंचों पे नाम लिखा हुआ है, इत्तेफाक से वो थोड़ी सी तब्दील हो गई है, इसलिए मैं माफ़ी के लिए ताख़ीर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब मुस्तकीम मक्की साहब को कि ऐसे इन नागुफ्तबा हालात में वो उर्दू के लिए काविशें कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि आप जैसे लोगों का अगर उनको साथ न मिलता तो ये खुदा टाइम्स का कारवां आगे ना बढ़ता। हमारे दरमियान मैं देख रहा हूं कि एक तवील फहरिस्त है मेहमानों की। ये वो मेहमान हैं जिन्होंने समाज में रहकर अदबी, सकाफती, मिली, तालीमी हर तरह से लोगों की इमदाद की है। मैं इन तमाम आए हुए लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और मुस्तकीम मक्की साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो नसीम सिद्दीकी साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करते हैं। मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ जनाब सोहेल खंडवानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अज़रा हैकम स्टेज पे तशरीफ लाएं। सोहेल खंडवानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों से सोहेल खंडवानी साहब का इस्तकबाल किया जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एडवोकेट मजीद मेमन साहब। आप एक बेहतरीन गायक भी हैं, MP भी हैं और अनीस नकवी ने मुझे इशारा दिया है कि आप एक बेहतरीन शायर भी हैं। एक मजमुआ जो है उर्दू अदब की खिदमत में उन्होंने पेश किया है, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान माहिम और हाजी अली दरगाह के रूह ट्रस्ट के रूह रवां जनाब सोहेल खंडवानी साहब मौजूद हैं। मैं मुस्तकीम मक्की साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सोहेल खंडवानी साहब की खिदमत में मोहब्बतों का नजराना पेश करें।
سہیل کھنڈوانی صاحب، یہ شخصیت بھی سماج کی درد کو محسوس کرتی ہے، دامے درمے سپنے ہر قدم پر ان کی مدد فرماتی ہے۔ میں نہایت مشکور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہدا ٹائمز کے لیے اپنا وقت صرف کیا ہے۔ عمر سعید صاحبہ کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں، زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں، اس لیے کہ یہ شخصیت جس نے ناگفتگو حالات میں اردو کی ترویج کے لیے، بقا کے لیے مسلسل برسوں سے اردو ٹائمز کے نام پر اخبار جاری کیا ہے، جو ابھی تک جاری و ساری ہے۔ میں مستقیم مکی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں۔ میں مستقیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ نتن قدم صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں۔ وشو قدم صاحب سدھی ونائک مندر کے ٹرسٹی ہیں، ہمارے بہت پرانے متر ہیں۔ اس کے بعد حبیب فقیر صاحب کو، عرفان صاحب، ان کو بلایا عقیدت پیش کیا ہے۔ جلدی جلدی کرے مشاعرہ شروع ہونے والا ہے، پبلک بور ہو رہی ہے۔ جی اس کے بعد یوسف صاحب، جی القاری ٹول کے روح رواں جناب یوسف صاحب کو بلانا ہے، یہ پیش کی جائے گلدستہ شال کے ساتھ۔ اقبال میمن صاحب کی خدمت میں بلائے عقیدت پیش کریں شال کے ساتھ۔ پلیز عرفان بھائی جی وہاں سے انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہوا ہے، ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے، قرآن میں آتا ہے کہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جن لوگوں نے ہمیں خدمت کی ہے اور ہمیں تعاون کیا ہے، جن کے تعاون کے بغیر یہ ناممکن تھا، اس میں سب سے پہلے نام ہمارے دوست اور ہر سماج کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کی کسی کو بھی نہ نہیں بھولتے، کسی بھی ٹاپک ہو، ایجوکیشن کے معاملہ ہو، سماجی ہو، میڈیکل کا ہو۔ وی آر شریف صاحب ہیں، ان کا بہت زیادہ تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، ان کے بیوی کو دونوں کی جوڑی تا قیامت باقی رہے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے سہیل کھنڈوانی صاحب ہیں، انہوں نے ہر دامے در میں سکھنے ہمیشہ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رہے۔ اور مجید میمن صاحب ہمارے ہمیشہ اچھے سے مشورے سے، حالانکہ اپنے مشوروں کے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں، لیکن ہم سے قیمتی مشورہ فری میں دیتے رہتے ہیں، اللہ ان کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور صحافت کی لائن میں سنجے راؤ صاحب جو سامنا کے لیڈر ہیں اور ایک دبنگ لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں ایسا بولتے ہیں کہ جیسے شیر بولتا ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتے، ان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں۔ صحافت کی لائن میں ان سے مشورہ کرتا ہوں میں، اور اس لیے صحافت کی وجہ سے اور سیاسی طور پر بھی میں اس کا شاگرد ہوں، اور ان کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ جو ہمارے پروگرام میں، ہمارے جیسے چھوٹے آدمی کے پروگرام میں جب بولتا ہوں، میں باتیں جب فون کرتا ہوں اٹھاتے ہیں، میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں سنجے راؤ صاحب کا۔ اللہ ان کی عمر لمبی کرے، ان کو صحت دے، ان کو عافیت سے رکھے، میری دعا ہے سنجے راؤ صاحب کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہمارے اردو ٹائمز کے جو مالکن ہیں قمر سعید صاحبہ ہیں، یہ ہر اعتبار سے جو بھی ہمارا اخبار کی لائن ہو، میڈیا کی لائن ہو، مشورے کی لائن ہو،
हमें अपने मशवरों से नवाजती रहती हैं, जो कुछ होता है अपने अखबार में देती भी रहती हैं, जो भी हमारा पैगाम होता है इनके जरिए छपता है, हम इनके भी बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। इसी तरीके से हमारे हबीब फकीर साहब हैं, बहुत हमारे पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, ये भी बहुत ज्यादा हमारी ताउन में मदद करते हैं। नसीर पठान साहब हैं, उनका भी बहुत ज्यादा एहसान है हमारे ऊपर, वो भी बहुत हमारी खिदमत करते हैं। इकबाल मेमन साहब हैं, हमारी मक्का मुकरमा से ही दोस्ती है बहुत ज्यादा, और क्या नाम है, ऑल इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जो मेमन जमात का उसके प्रेसिडेंट हैं, और हर समाज में जो भी समाज का काम हो, किसी भी लाइन का हो, हर समाज में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम में आए, तशरीफ लाए। और हमारे गुल्लू खालिद कुरैशी साहब जो बीजेपी के लीडर भी हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे महफिल में तशरीफ लाए। इसी तरीके से हमारे काजी साहब भी आए हैं, शरीफ साहब आए हैं, इनका भी शुक्र अदा करते हैं। काजी साहब हैं, मोबिन साहब हैं, हमारे अयूब साहब हैं, हमारे बहुत पुराने दोस्त सिंधी हैं, अजमल साहब जो मंजल साहब जो है हमारे लायंस क्लब के प्रेसिडेंट है बॉम्बे के, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं हम। और हमारे बहन है, भाभी है, भाई है, दो हैं जिनका अपना खुद का अपना प्रोडक्ट है, अनुपम श्रीवास्तव है, ये रफी की लता की आवाज की नंबर 1 की आवाज इनकी लता की, और उनके शौहर के नाम क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं, अल्लाह नहीं, अतुल श्रीवास्तव साहब, ये मुकेश की आवाज में, इनका खुद अपना का प्रोडक्शन है अपने घर का, ये हमारे दावत पे तशरीफ लाए, बहुत बड़ी शख्सियत है ये इस बॉम्बे के। अनिश नकवी साहब की खिदमत में हम अभी दीवान साहब आप पेश कर दें, और सारे जितने हमारे मेहमान आए हैं, बहुत सारे हमारे वीके साहब आए हैं, वीके साहब उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं, हमारे प्रोग्राम में आए और सहाफत के लाइन में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है, उनका भी शुक्र। हमारा फैज पठान मेरा भंजा आया हुआ है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सलामत रखे बेटा, आ जा बेटा, ऊपर आ जा बेटा, फैज खान आ जा बेटा, आ जा। हाँ, हमारे दोस्त अरशद अंसारी साहब जो बहुत मुतहबिक हैं, बीजेपी के लीडर भी हैं, और वैसे भी समाजी और हर काम में आगे बढ़ चल के रहते हैं। मेरा उन्होंने बहुत ताउन किया, उनका शुक्र अदा करता हूँ, उनको भी स्टेज पे बुलाने की। आई भाई आइए। हमारे सुहेल लोखंडवाला साहब बहुत ताखिर से आए, हमें उनसे शिकायत है, उन्हीं के जेर सरपरस्ती में ये प्रोग्राम हुआ है, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, अल्लाह ने सेहत याद रखे, सेहत कामिला व आजिला अता फरमाए। बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा था मैं। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, तशरीफ लाइए। शेख अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाइए प्लीज सर। हाज़रीन, हमारे दरमियान सभी लोखंडवाला साहब मौजूद है। मैं मुस्तकीम मक्की साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। जनाब सोहिल लोखंडवाला साहब, जोरदार तालियों से उस शख्सियत की पजीराई कीजिए जो समाज की फलाह व बहबूद के लिए हमा वक्त तैयार है। जनाब सोहिल लोखंडवाला साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करते हुए मैं मुस्तकीम मक्की साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अंजुमन इस्लाम ग्रुप ऑफ स्कूल के नायब सदर जनाब डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब के साथ गुलों का नजराना पेश करते हुए जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। मैं आखिरी नाम ले रहा हूं अरशद अंसारी साहब से, अरशद अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं कि अगर वो स्टेज पे तशरीफ लाएं प्लीज। मैं मुस्तकीम मक्की साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अरशद साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें और उसके बाद आगे की कार्रवाई जारी रखें। जनाब अरशद सिद्दीकी साहब की खिदमत में गुलों का शॉल का नजराना पेश करते हैं। एक हमारे रुकिन मजीद मेमन साहब हैं जो एनसीपी के
नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आपसे गुजारिश है सर कि आइए अपने इज़हार ख्याल की कुछ हमें तसल्ली दीजिए। आइए तशरीफ आइए सर, तशरीफ आइए माइक पे। उसके बाद सुहेल उठन वाले होगी थोड़ी देर बस, उसके बाद खत्म। सब अपने मेहमान सब नीचे आ जाएंगे, शोरा इकराम ऊपर आ जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर तशरीफ फरमा अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों हस्तियां, सबका नाम लेने में शायद काफ़ी वक्त निकल जाए और उसमें ख़तरा ये है कि शायद कोई नाम रह न जाए। तमाम हजरात व ख़वातीन स्टेज पे और सामने तशरीफ़ फरमा। जनाब मक्की मुस्तकीम साहब को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ और ये हुदा फ्रंट, सोशल फ्रंट की तरफ से आज जो एहतमाम किया गया है उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। एक एक शख्स के पास जाकर उसे मदऊ करना और फिर उसे यहाँ रिसीव करना, इतनी गैलेक्सी ऑफ पर्सनालिटीज़ जो हैं सारी, ये कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुदा मैगज़ीन बाकायदा मुझे मिलता है और मैं उसे पलट पुलट कर देखता हूँ तो उसमें कई नेशनल इंटरनेशनल समाज के मसाइल, कौम के मसाइल और अच्छे अच्छे मज़ामीन, ख़बरें उसमें मिलती हैं। मगर सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जिन चमकते हुए सफ़हात पर मैं इस मैगज़ीन को पाता हूँ, ऐसा कोई मैगज़ीन मुझे बम्बई में नज़र नहीं आता। मक्की साहब से मैं पूछता हूँ जब मिलते हैं कि मक्की साहब ये तो एफोर्ड कैसे करते हैं आप, इतना इसकी कीमत जो है मुझे लगता है उससे उसकी ज़्यादा उसकी लागत है। तो उनका ये कहना है कि ये मेरा सिलसिला घाटे में चलता है और चलता चला आया है और अल्लाह मेरी मदद करता है। हमारे कुछ यहाँ हजरात जो बैठे हैं वो काफ़ी सखावत के साथ मक्की साहब की इमदाद में लगे रहते हैं, मुझे इसका इल्म है। और ख़ास तौर पर उर्दू ज़बान किसी तरह से पढ़ी जाती है। वैसे उर्दू टाइम्स की मोहतरमा सईदा मिसेस सईद भी मौजूद हैं यहाँ। उर्दू आहिस्ते आहिस्ते कम होती जा रही है, जिसका यकीनन हमें मलाल है। कुछ लोगों ने उर्दू को समझा है कि सिर्फ वो मुसलमानों की ज़बान है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। उर्दू मैं समझता हूँ गैर मुसलमानों में भी इतनी ज़्यादा मकबूल है और कि जितनी मुसलमान अपने उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करता है। दिल्ली में रहने से और कुछ लोगों से मिलने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि दिल्ली में उर्दू की जितनी इज्जत या एहतराम किया जाता है शायद मुंबई में कम है उसके एतबार से। और दिल्ली में मैंने गैर मुसलमानों को देखा, पंजाबियों को देखा, कई लोगों को जो उर्दू से इतने ज़्यादा लगाव है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हों या मंत्री हों, मुझे जेटली साहब कह रहे थे अभी एक हफ्ता पहले कि मैंने कहा कि साहब आप तो हिंदी भी बहुत अच्छी बोलते हैं अपनी स्पीच में और इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं और इतने बड़े मकाम पर हैं, आप मोदी के बाद, प्राइम मिनिस्टर के बाद लगभग सेकंड नंबर पर हैं और आप अच्छा बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे अलग ले जाके कहा मगर मजीद भाई उर्दू का शेर पढ़े बगैर मजा नहीं आता। और तकरीर चाहे मेरी कितनी भी अच्छी हो, हम लोग हाउस में जब बोलते हैं कोई तो एक मामूली सा यानी ऐसा शख्स, ऐसा एमपी जिसका कोई ज्यादा शोहरत नहीं है ना उसकी पहचान है, वो बाजी मार जाता है कि वो उर्दू के एक दो शेर पढ़ लेता है और उसमें शरारती बनता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि उर्दू के शेर का जो जादू या असर लोगों पर पड़ता है, यहाँ तक कि चेयरपर्सन जो ऊपर बैठा है वो भी मुस्कुरा देता है कि भाई ये क्या बात कही, और जो शेर खत्म होते ही तालियां बजती है और अप्लॉज मिलता है, वो यकीनी तौर पर हमारी हौसला अफजाई करता है। ये कोई लंबी तकरीर का वक्त नहीं है, मैं मुख्तसरन मक्की साहब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करूंगा उनकी काविशों के लिए, उनकी लगातार कोशिशों के लिए। मैं जानता हूं कि कितना दुश्वार है इकोनॉमिकली एक ऐसे अखबार या उर्दू मैगजीन को चलाना जिसकी लागत उसकी हासिल होने से ज्यादा उसके प्रोडक्शन के लिए एक ये गलत कारोबार है।
मगर ये कारोबार गलत होने के बावजूद भी उर्दू की खातिर वो खिदमत करते चले आए हैं, और मुझे यकीन है कि उनको हम सब मिलकर, और अल्लाह की गैबी मदद उनको है, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, माली तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा मक्की साहब का, मुझे आपने यहाँ बुलवाया, मुझे ये इज्जत बख्शी और मुझे मौका दिया कि मेरे तमाम अजीज़ जो यहाँ और सामने बैठे हुए हैं उनसे आज मुलाकात का शर्फ हासिल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया मेरी मेहमान जी। अपना सोहेल लोखन वाले से हमारे से सर नहीं दो बात कर दे प्लीज सर नहीं आ जाइए। प्रिंसिपल सोहेल लोखन वाले से पहले उनके जो सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले मुस्तकीम मक्की की हिम्मत की दाद देता हूँ कि गुज़िश्ता 10 सालों से वो इस महफिल को चला रहे हैं, और जो लोग इनको दामे दर्द सुखने कदमे किसी तरह भी मदद कर रहे हैं उन सब भी काबिल सच मुबारकबाद है। सर मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं संजय राउत साहब आपको, कि आपने जो बाला साहेब ठाकरे की फिल्म बनाने का सोचा है और बाला साहेब ठाकरे के किरदार में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो पेश कर रहे हैं, सुनिए ये आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए 1 मिनट लूंगा मैं। ये नवाज जो लफ्ज है ना, नवाजुद्दीन जिसको दीन ने नवाजा, वन हु इज ब्लेस्ड बाय रिलीजन, और वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। ये नवाक्तन से निकला है, फारसी का लफ्ज है। नवाक्तन मजदर है, उसका अमर है नवाज। उसी तरह एक अंदोक्तन है, रीख्तन है, अंदाख्तन है, ये सब फारसी के मजदर है। तो आप एक ऐसे शख्स को बाला साहब का किरदार दे रहे हो जिसको इस्लाम मजहब में नवाजा, और तो ये आपकी कुशादगी कल्ब या कुशादगी जहन का ये सबूत है। और मैं गया था भिवंडी, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि भिवंडी पे मंडे जो जगह है वहां एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल, जहां बाला साहेब ठाकरे ने 3री जमात तक वहां तालीम हासिल की थी, और वहां एक हनुमान का मंदिर है, उस हनुमान के मंदिर में वो रोजाना पूजा को जाते थे। मैं भी छोटा मोटा एक्टर हूं साहब, मैंने भी उस कॉलेज के जमाने में जूलियट के साथ रोमियो का किरदार किया है। अगर कहीं मेरी जरूरत हो इसमें तो मुझको बुला लीजिए, मैं हाजिर खिदमत हूं। एक बात जज़ाकल्लाह खैर साहब, सर आपने थोड़ी सी तकरीर कर दी लेकिन पूरे मजमे को गर्म कर दिया, जज़ाकल्लाह खैर। मुस्तकीम मक्की साहब की खिदमत में सिपासनामा पेश करते हुए साथ ही संजय राउत साहब, एडवोकेट मजीद मेमन साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तारीख को दरगुजर करेंगे, और इसके कि मैं मुशाहिरे की उम्र में ही शख्स से शख्सियत बन जाते हैं, और वो भी रिफाए खुदाई का सफर तय करते हुए। लेकिन कारखाने खुदा में ऐसे लोग वक्फा से बनते रहते हैं जिनके अमल की खुशबू से गुलिस्तान दुनिया में रंग व खुशबू का वजूद कायम रहता है। मोहतरम मुस्तकीम मक्की साहब एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है
इल्म व अदब से मुनव्वर घराने में आके खोली और अवाइल उम्र से ही अदब वो इल्म से इस्तिफादा हासिल करने के शगफ ने उनको मोहतरम इस्तिफादा करने के शगफ ने उनको खिदमत खल्क की राह पर लगा दिया। जज्बा सादिक था, अमल नेक था, सो शहरों के शहर नबी के दादेहाल मक्के की सरजमीन पर जा पहुंचे और अपनी उम्र के 26 बरस इस पाक सरजमीन की खाक को खा के शिफा की तरह सांसों में बसा लिया। और जब हिंदुस्तान लौटे तो समाजी, सियासी और सकाफती खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दिया। इस सिलसिले में हुदा टाइम्स का इजरा किया, जो गुज़िश्ता 10 वर्षों से तशनगाने इल्म व अदब के ज़ौक़ व मुतर्रा को मुनव्वर व मुसफ़्फ़ा कर रहा है। रिसाले के मेयार को बरकरार रखने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ गवा चुके हैं। ये शेर इन पर सादिक आता है, अंधेरा मांगने आया था, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख। हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। वो मजहब इंसानियत के मुबल्लिग हैं और दौरे हाजिर में मध्यम होती इंसानी शवा को रोशन रखना अपना अव्वलीन फरीजा समझते हैं। उनका अकीदा है कि नफरत, बूस, अनाद का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ रवादारी से किया जा सकता है। वो रवादारी जिसकी तालीम हमें इस्लाम ने दी है और नबी बरहक जिस तालीम के मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए थे। मुस्तकी मक्की साहब की कुशादा दिली और बेहतर फिक्री और रवैये की वजह से उन्हें मुल्क व बैरून मुल्क के इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी और बतौर सदर मदू किया जाता है, ताकि उनके फिक्री जवाहरेजों से दामाने दिल व दिमाग को माला माल किया जा सके और वो इन इजलास में सामाइन के दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं। दिल्ली में कायम फ्रीडम फाइटर मेमोरियल फाउंडेशन को यह फख्र हासिल है कि गुज़िश्ता 20 वर्षों से सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, नेज मुशायरों के जरिए उर्दू आवाम से बराह रास्त राब्ते में है। फ्रीडम फाइटर मेमोरियल ने पार्लियामेंट हाउस और प्रेसिडेंट हाउस जैसे मुल्क की बावकार इमारतों में कई प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं और मोतबर शोरा वो अदीबों की किताबों के इजरा के साथ साथ मुल्क व बैरून मुल्क ममालिक से आने वाले सफीरान उर्दू अदब व इंसानियत को अवार्ड से नवाजती रही है, ताकि वो मजीद ज़ौक़ व शौक़ से अदब व ज़बान की खिदमत अंजाम देते रहें। ये सिपाहनामा एजाज़नामा है। ये सिपाहनामा एजाज़नामा ही नहीं बल्कि एतराफ़नामा है मुस्तकी मक्की साहब की उन खिदमत का जो वो निहायत पामर्दी से कर रहे हैं। खुदाए वाहिद से उनकी सेहत व कामरानी के लिए दुआ करते हुए फ्रीडम फाइटर मेमोरियल फाउंडेशन के अराकीन खुद को खुश नसीब तस्वुर करते हैं। ये 4 मिसरे मैं उनकी नजर कर रहा हूं, समाज फरमा लें। हामिले जहदो शुजात कौन है मक्की मियां, हामिले जहदो शुजात कौन है मक्की मियां। इल्म इरफा की अलामत, इल्म इरफा की अलामत कौन है मक्की मियां, इल्म इरफा की अलामत कौन है मक्की मियां। और परचमे हक किसके हाथों में हुआ है सर बुलंद, परचमे हक किसके हाथों में हुआ है सर बुलंद। इफ्तिखारे आदमियत कौन है मक्की मियां। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस खूबसूरत मुशायरे की शमा रोशन करने के लिए उर्दू अदब की कदावर शख्सियत जो आज इस बामकसद और खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमाएगी, वो शख्सियत है जनाब शमीम तारिक साहब। मैं शमीम तारिक साहब और अंजुम इस्लाम के सेक्रेटरी जनाब मोहतरम इजहार काजी साहब, अनीस नकवी साहब और शमीम और अपने मुस्तकी मक्की साहब से गुजारिश करता हूँ कि अज़राए करम वो आज के मुशायरे की शमा रोशन करें।
इस प्रोग्राम की शमा रोशन करते हुए आबू सदारत जनाब शमीम तारिक साहब, साथ ही इजहार काजी साहब, मुस्तकीब मक्की साहब, अनीस नहवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।